Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. Same here, I again welcome each and everyone of the class 11th on the same platform of the Life Physics. So you all know that we are dealing with the chapter named as the motion in plane and now we are at the end point of that chapter. तो हम लोग उसके लगभग end point पर हैं, but it does not mean that this chapter is going to finish in this lecture. It would might take the next one more lecture for that, but we are at the end point for that. So recently we studied about the motion in the plane and the last video and the last lecture was totally based on the numericals or you can say the special types of the numerical जो थोड़ा lengthy तो गया था but it contains the special type of numerical and I hope you have completed all the assignments and the things related to that. Okay, so in the past 1 or 2 days I've been little bit busy for some aspects, so due to the some reasons I was busy, so I was not able to reply some of the students. So please I will reply as soon as the possible. जैसे ही मैं आपको अभी वापस से reply कर दूंगा for the doubts जो आप लोगों ने मुझे send किए हैं. So now let's start with this chapter or let's start with this final topic जो अभी हम लोग start करने वाले हैं. This is the you can say the final hammer. एक आखिरी hammer मारना है, एक important point जो हमें आखिरी इस motion in plane से सीखना है. And the name of that topic is projectile motion. So we are going to study this type of motion. तो हम लोग since you all know that we are dealing with the motion. हम लोगों ने motion से start किया था. Motion in 1D in a straight line. Then we go with the motion in a plane. उसके लिए हमने vector समझा, बाकी other चीजें की. Now we are going to deal with projectile motion. So what is the projectile motion? First of all, if I give you the basic definition for that, when a body is thrown under the gravity action in horizontal direction then it obeys horizontal as well as vertical motion. It obeys horizontal as well as vertical motion. So whenever we throw any body, if I gave you the rough idea for that, let's suppose we are here. Okay, we are present at the sum of the building. हम किसी building के ऊपर हैं जो कि certain height का है. I will discuss about that. हम लोग डिटेल में जाएंगे. अभी के लिए rough idea. So let's suppose you are presenting here at a building of some height and you are throwing that ball. आपके पास कोई ball है, object है, and we are throwing that object in a horizontal direction. हम लोग उसे horizontal direction में throw कर रहे हैं, but under the action of gravity. And because of that, since आपने horizontal में throw किया, but gravity का action था, the body is going to fall in this manner. जब भी हम लोग किसी भी body को किसी building से throw करते हैं, let's suppose you throw that. So it will go in this manner and finally touches the ground. So this type of motion is called as projectile motion. Okay, तो इस टाइम आप लोगों ने इसे बिल्डिंग के टॉप से थ्रो किया. If I go within this manner, let's suppose I am at the ground itself. मैं ग्राउंड के ऊपर ही हूँ and I throw an object in this direction. मैंने ऑब्जेक्ट को कुछ इस डायरेक्शन में थ्रो किया. Means ग्राउंड के ऊपर से आपने थ्रो किया. Like we are throwing the javelin throw. आप लोगों ने गेम सुने होंगे ना, javelin throw, हैवी बॉल थ्रो करते हो और क्रिकेट का बॉल भी आप ऐसे ही थ्रो कर रहे हो. You are throwing that ball making some angle with the horizontal and it finally comes back to the ground. तो जब भी आप किसी भी बॉल को थ्रो करते हैं with respect to ground तो वो आपका फाइनली कुछ इस तरीके से पाथ को फॉलो करते हुए यहां तक आता है. So these two path followed by the body, दो अलग अलग कंडीशंस है. इसे थ्रो कहीं और से किया गया है. It has been thrown from the ground itself by making some angle with respect to ground, but these both the motions are type or these both motions are in the category of projectile motion.
मींस इसमें बॉडी दोनों मोशंस को कवर कर रहा है। बॉडी इज गोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बॉडी आगे जा रहा है और बॉडी नीचे भी आ रहा है। यहाँ पे बॉडी नीचे आ रहा है, यहाँ पे बॉडी पहले तो ऊपर जा रहा है फिर उसके बाद नीचे आ रहा है। मींस योर बॉडी इज अंडर द हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल मोशन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, यानी जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन में है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले आगे चल रहा है फिर नीचे जा रहा है, बॉडी दोनों मोशंस एक साथ कर रहा है, एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। सो आई होप यू गेट व्हाट इज द बेसिक थिंग वी कॉल, और these are the two types of the projectile आप बोल सकते हो, and we are going to study both the projectile। हम लोग दोनों projectiles को ही डील करेंगे, that is in our syllabus। and I personally call, again मेरे कुछ मीन स्टेटमेंट बुलाने के तरीके हैं, डायग्राम यही होंगे, कॉन्सेप्ट वही होंगे, बट आई यूज्ड टू पर्सनली कॉल दिस एज अ हाफ प्रोजेक्टाइल। मैं इसे क्या बुलाता हूं? हाफ प्रोजेक्टाइल। एंड आई यूज्ड टू कॉल दिस एज अ full projectile। So I hope you got why I call this as a half projectile and why I call this as a full। ये मेरे नेम है, प्लीज स्टूडेंट्स, दिस इज द नेम। जो ऑब्वियसली बात है, मैंने आपसे पहले भी बात किया था, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स जिसमें हमें समझ में आए, जिससे हमें चीजें याद रहे। ओके, सो ये कोई टेक्निकल नेम नहीं है, सिंपल प्रोजेक्टाइल आता है आपके न्यूमेरिकल। व्हेन यू गेट अ न्यूमेरिकल यू विल गेट अ सिंपल क्वेश्चन, अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम हियर। आपने बॉडी को यहां से थ्रो किया, अब वो आपको देखना है कि अगर ग्राउंड से थ्रो करते हैं तो वो पूरा जाएगा, मतलब एक तरीके से ग्राउंड से ग्राउंड तक, यहाँ पे बिल्डिंग से ऊपर, तो एक तरीके से ये इसका हाफ हिस्सा दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है और ऊपर से वापस नीचे आ रहा है। So at the same point, इन दोनों चीजों को देखते हुए I used to call this as a half projectile, this as a full projectile। Okay, in the NCERT ऐसा कुछ नाम नहीं है आपके पास, okay, but simple projectile word use है, but we differentiate। चलो इन दोनों को differentiate कर लेते हैं। That half projectile जब building से throw करेंगे, and full projectile when we'll throw from the ground itself by making some angle। Okay, so such type of motion is called as projectile motion। So this is been the introduction that what is the projectile motion। So whenever the body is being thrown under the gravity action in a horizontal direction, the body is under both the motion। body दोनों motions के अंदर है, horizontal as well as vertical simultaneously, and such type of motion is called as horizontal motion। And if I add one more point, their path followed, what their path followed is known as or is said to be trajectory। what we call this as a trajectory। so what is the meaning of trajectory? trajectory means वो कौन से रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, the path followed, and we draw it। जब भी हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो किया, so this is the path followed by this object, so this would called as the trajectory of the object, and this would also called as a trajectory। trajectory word means the path, कि वो किस रास्ते से जा रहा है। okay, so this word is going to be very much familiar। ये word बार बार यूज होने वाला है और हम इसके बहुत familiar होने वाले हैं। so let it be clear at the starting itself that the trajectory word means the path followed by the object। I hope you got it। okay, so please definition and the two types of the projectile जो हम लोग डील करेंगे। okay, so पहले तो हम हाफ को पढ़ेंगे, but before that there is something जो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। okay, so when we are going to study the projectile motion, जो आप लोगों ने देख लिया that how the projectile motion is going to start, means if we want a body in a projectile motion, हमने पहले बॉडी को हॉरिजॉन्टल में पढ़ा, then we study the body in vertical, तो वो 1D था। अब आप दोनों कर रहे हो, आप हॉरिजॉन्टल भी चल रहे हो और वर्टिकल भी चल रहे हो। इट मींस आप दो डायमेंशंस को एक साथ देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन। सो दैट्स व्हाई इट इज मोशन इन अ प्लेन। प्लेन वर्ड मींस सरफेस, जनरली हम प्लेन वर्ड यूज करते हैं सरफेस के लिए, एंड सरफेस इज ऑलवेज बीन मेड अप ऑफ बाय यूजिंग द टू डायमेंशंस। सो दिस व्हाइट बोर्ड इज योर सरफेस, your answer sheet, your paper sheet is the surface, your floor area, आपके घर का जो फ्लोर है वो सरफेस है, आपका जो वॉल है वो सरफेस है,
एंड वॉल और जिसे भी हम सरफेस बुलाते हैं, द सरफेस इज ऑलवेज बीन जनरली मेड अप ऑफ 2D। हम सरफेस को हमेशा 2 डायमेंशंस में देखते हैं कि भाई उसके दो डायमेंशन हो गए। ओके, टेक्निकली यहाँ पे थर्ड डायमेंशन भी है, द थिकनेस, लेंथ, विड्थ, आप कुछ भी बुलाइए इसे, बट ये एक थिकनेस भी है, बट दिस थिकनेस इज वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू लेंथ एंड द विड्थ। दैट्स व्हाई ये चीज नेग्लेक्टेड हो जाता है। So the plane is being always considered when we are dealing with the 2 dimensions. तो generally हमारे पास दो dimensions थे, horizontal as well as vertical motion, and now we are going to study. But one thing जो मैं आपसे पहले ही clear कर देना चाहता हूँ, there are some points जो हम लोग यहाँ से at the starting of this projectile हम लोग clear करते हुए जाएंगे, and these are called as the assumptions. There are some assumptions, some key points, whatever be the thing that you want to call it. आप इसे किसी भी word से, किसी भी नाम से अगर call करना चाहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। That whether you call this as assumptions or some important key points जो हमें considered रखने। So there are some points that we have to be considered while we are starting the projectile motion. जब हम deal करने जा रहे हैं उससे पहले कुछ points पहले clear कर देते हैं। Point number 1. That both the motions, कौन से motions, horizontal plus vertical, so we are dealing with both the motions are simultaneous. So both the motions are simultaneous. What is the meaning of simultaneous? I hope most of you are get it. Simultaneous word means both the motions. In Hindi if I call एक साथ हो रहे हैं, means जब आप horizontal motion cover कर रहे हो उसी time में आप vertical motion cover कर रहे हो। यानी मैं आगे भी जा रहा हूँ, if I give in a simple way language, if I throw an object from here, तो मैंने object को ऐसे throw किया था पर वो यहाँ पे जाके गिरा। तो what I used to call कि जिस टाइम पे, जिस समय मैं आगे जा रहा हूं उसी समय मेरा ऑब्जेक्ट नीचे भी गिर रहा है। That both the motions are happening togetherly, दोनों मोशन एक साथ हो रहे हैं। And what is that word means, एक साथ होना? It implies that both the motions has one thing common. दोनों मोशंस में एक चीज कॉमन होगा और वो क्या, दोनों एक साथ होंगे। एंड एक साथ वर्ड आपको किसके बारे में इंप्लाई करता है? इट इंप्लाइज अबाउट दी टाइम, ये टाइम के बारे में इंप्लाई करता है। एंड दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो आपको समझना है, जो मैंने आपको रिमेंबर previous to previous lecture when we study about motion in plane, mean when we study about all the equations of motion in the vector form, I cap, j cap, k cap, so I told you that every component has a different direction, means x axis, y axis, z axis। तो हमने equation of motion तीनों axis में लगा। If I talk about the first equation of motion, let's check out that v is equal to u plus at, so what would be in x direction? Vx is equal to ux plus ax into t। I think you got it। अब मैं इसे verbally call कर रहा हूँ। The second was Vy is equal to uy plus ay into t, and similarly Vz means velocity, final velocity in z-axis is equal to uz plus az into t। So everything is happening x, y, z, but since तीनों के तीनों चीजें अगर एक ही बॉडी के हैं, when both all the three components are lying for one body, means this Vx, Vy और Vz जो भी आपने इक्वेशन बनाए, these are for one body itself, वो एक ही बॉडी में है, मतलब वो सेम बॉडी x एक्सिस में भी जा रहा है, y एक्सिस में भी जा रहा है और z एक्सिस में भी जा रहा है। इसका मतलब आप उसे 3 डायमेंशन में थ्रो कर रहे हो। जैसे I told you ना, 3 डायमेंशन मोशन, if I want to give a general example of the 3 डायमेंशन मोशन जो हमारी डेली लाइफ में है, and what is that example? Like the flying of the bird, flying of the aeroplane। तो मान लीजिए बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है और उसका मोशन कुछ इस तरीके से है, मूव करने का तरीका x एक्सिस में वेलोसिटी, y एक्सिस में और z एक्सिस में, पर वो है कौन? एक सिंगल बर्ड, एक ही बॉडी है जो तीनों को एक साथ काम कर रहा है। तो व्हाट इज द थिंग जो तीनों में कॉमन रहेगा? एंड व्हाट इज दैट थिंग?
टाइम, बिकॉज टाइम इज नॉन डायमेंशन, मीन्स नॉन डायमेंशन वर्ड मीन्स वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम इज जनरल फ्लो फॉर एवरीवन, और जब भी कोई चीजें साइमल्टेनियसली होता है तो वन थिंग इज ऑलवेज बीन कॉमन अमंग ऑल ऑफ देम एंड दैट थिंग इज टाइम। सो आई होप यू गॉट इट एंड दिस इज द पॉइंट जो हम वापस से यूज करेंगे। मींस टाइम वही फैक्टर होगा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को जोड़ेगा। सो दोनों मोशन साइमल्टेनियस है, बट एक और पॉइंट और मैं ऐड करने चाहता हूं दैट बोथ मोशंस are independent to each other। दोनों मोशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। व्हाट इज दैट मीनिंग? देखो एक साथ हो रहे हैं बट इंडिपेंडेंट है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा दैट बोथ मोशंस आर हैपनिंग डिफरेंटली। लाइक अगर मैं वापस से आता हूं तो आपने बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया। फॉर एन एग्जांपल, यू हैव अ ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज आई हैव अ हाइट फ्रॉम, सो दिस मार्कर इज अ ऑब्जेक्ट, ओके, आई एम थ्रोइंग दिस ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन, ओके, सो आई हैव सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैं ग्राउंड से कुछ हाइट पे हूं, बट मैंने ऑब्जेक्ट को कहां थ्रो किया? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो आई थ्रो द ऑब्जेक्ट इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वो नीचे आ गया, बट नीचे ऐसा नहीं आया कि वो डायरेक्टली ऐसे ही गिर गया। So I haven't free fall, मैंने उसे free fall भी नहीं किया, but horizontal में throw किया था। So now अब आपकी body दो motions में चल रहा है, horizontal as well as vertical। So horizontal 10 मीटर पर सेकेंड जो आपको आगे लेके जाने का कोशिश करेगा और वो अपना काम करेगा। So horizontal motion it will work its own work, वो अपना काम खुद करता रहेगा, उसका काम है मुझे आगे लेके जाना है। But due to the gravity this motion also came into the action, okay, हमने vertical motion नहीं दिया था, we haven't give the vertical motion in this diagram, ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो आगे फेंका था, but under the action of the gravity vertical motion came into play। vertical motion means acceleration due to gravity came into action, small g, and this small g is being responsible for change your velocity because small g stands for acceleration due to gravity। And this acceleration due to gravity, acceleration word means change in velocity, और ये velocity आपको means ये acceleration आपकी velocity को increase करेगा because we are falling downward, and whenever the body fall downward, अगर आप vertical motion को देखो तो vertical motion नीचे आ रहा है, और जब भी body नीचे fall करता है g would be taken as plus, means acceleration आपकी velocity को increase करेगा। बट आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कौन सी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी? वर्टिकल। लेट्स सपोज आई गिव द नेम vy, ओके, इसे नाम दे देता हूं vx। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपका वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो आपको सीधा ले जाने की कोशिश करेगा, वो अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। दिस वर्ड सेज कि बोथ द मोशंस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दोनों मोशन अपने अपने काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे बट अपने अपने काम करेंगे, ओके, दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस इंडिपेंडेंट वर्ड मींस दैट, ये बात आपको समझना है दैट बोथ द मोशन डज नॉट इफेक्ट ईच अदर। लाइक ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर आपका बॉडी नीचे आ रहा है मींस यू आर अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका जी लग रहा है पॉजिटिव क्योंकि वी आर फॉलोइंग विद द ग्रेविटी, तो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी तो उससे आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में चेंज आएगा। नो, हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल की वजह से हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल की वजह से वर्टिकल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैन बी चेंज बिकॉज़ वी आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो और किस में थ्रो कर रहे हो आप? वी आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट इन एयर, हम हवा में उसे थ्रो कर रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर एयर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, एयर मॉलिक्यूल, गैसेस, पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल सब प्रेजेंट है हमारे सराउंडिंग में। सो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो हॉरिजॉन्टल की तरफ देखो, वर्टिकल को भी थोड़ी देर के लिए साइड में लगा लो क्योंकि दोनों का काम इंडिपेंडेंट है। प्लीज ये चीज समझना है। व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोजेक्टाइल मोशन वी विल स्टडी बोथ द मोशंस। ये कंफ्यूज करता है कि सर इन दिस कैटेगरी
इन दिस मोशन हमें दोनों एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब तक तो इन 1D या तो हॉरिजॉन्टल चल रहा था तो हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था तो वर्टिकल था, अभी तो दो आ गए, हम तो कंफ्यूज होंगे। सो इट इज नॉट वरी टू गेट कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, लेट इट बी सिंपल, इसे सिंपल रखना बस। ओनली काम ये है कि इन दिस न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में आपको दोनों मोशन पढ़ने हैं, बट अलग अलग पढ़ने हैं। हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हो तो हॉरिजॉन्टल पढ़ो, और वर्टिकल पढ़ रहे हो तो वर्टिकल पढ़ो। तो यानी अब तक जो आपने 1D में किया, whatever be the thing that you have done in a 1D, आप दोनों को एक साथ बस यहां पे करने वाले हो, बस काम का यही है। So that is the part जो मैं आपको ट्राई कर रहा हूं समझने का। I hope you are getting that both the motions are independent. ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक चीज है जो हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी रोक सकता है और डिक्रीज कर सकता है। व्हाट इज दैट थिंग? एयर रेजिस्टेंस, आपका हवा का अपोजिशन। ऑब्वियसली बात, जब भी हम चलते हैं तो हवा और एयर हमें अपोज करता है मोशन में। सो ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। सो एयर केम इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड, मींस एनीथिंग दैट कैन फ्लो एंड इट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस। सो डेफिनेटली आपको एक चीज रोक सकती है, वो है एयर रेजिस्टेंस, बट इट इज वेरी स्मॉल। एंड ड्यूरिंग दिस कॉन्सेप्ट हम लोग एक और assumption लेंगे, दैट assumption इज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ये बात भी हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक लेके चलेंगे, दैट वी विल नॉट कंसीडर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर। एयर ने यानी हवा ने कितना अपोजिशन लगाया वो हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो अब बताइए, अगर हवा का अपोजिशन ही नेग्लेक्टेड है, इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, क्या आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अब कोई चेंज कर सकता है? नो वन कैन चेंज, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स ही नहीं है। देयर इज नो अदर फोर्स which either oppose you or which either support your velocity। कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को या तो अपोज करे या सपोर्ट करे, बट देयर इज वन फोर्स जो वर्टिकल मोशन को सपोर्ट जरूर करेगा। एंड व्हाट इज दैट फोर्स? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी केवल वर्टिकल को कंपेल करेगा दैट प्लीज इंक्रीज योर वेलोसिटी, क्योंकि वी आर वर्किंग विद द ग्रेविटी बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव। तो वर्टिकल वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, बट हॉरिजॉन्टल में नहीं, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट। ओके, सॉरी, ओके, सो बोथ द प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, बट along with independent they are simultaneous। So what is the meaning of simultaneous, please? Simultaneous means time factor is common। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। वैसे तो मैं 2-3 बार बोल चुका हूं that these things are common, तो ये सारी चीजें कॉमन है। So time is the only factor which should be common in horizontal and vertical। यानी टाइम एक ऐसा चीज होगा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में सेम आएगा। बिकॉज इफ आई से इन अ सिंपल लैंग्वेज, जितना टाइम में, जितना समय में बॉडी आगे जा रहा है उतना ही समय में बॉडी नीचे भी गिरेगा। तो अगर आप ये बोलते हो कि व्हेन यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए एंड बी और आपको बी तक आने में 2 सेकंड लगे, तो व्हाट इज दैट 2 सेकंड? 2 सेकंड इज द टाइम जिसमें हम आगे भी गए, और 2 सेकंड ही वही टाइम है जिसमें हम नीचे भी आए। इट इज नॉट लाइक दैट कि दिस 2 सेकंड इज फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, तो आगे जाने का 2 सेकंड है, नीचे आने का 2 सेकंड है, तो सिंस बॉडी दोनों मोशन कर रहा है तो टोटल टाइम 4 सेकंड। प्लीज ऐसा नहीं है। 4 सेकंड तब हो सकता है व्हेन बॉडी इज गोइंग लाइक दैट, 2 सेकंड आगे और 2 सेकंड नीचे, when both the motions are happening separately। दोनों मोशन जब सेपरेटली काम कर रहे हैं कि बॉडी हॉरिजॉन्टल जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, so 2 सेकंड फॉर दैट, 2 सेकंड फॉर दैट, so टोटल टाइम A to B जाने का 4 सेकंड। बट डज दिस टाइप ऑफ थिंग इज हैपनिंग हियर? क्या यहाँ पे ऐसी चीज हो रही? नो, यहाँ पे दोनों प्रोसेस सेपरेट नहीं हो रहे, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस मींस एक साथ चल रहे हैं। सो प्लीज आई थिंक और आई होप कि आप मेरे इस पॉइंट को समझने का कोशिश कर रहे हैं और यू आर गेटिंग दैट पॉइंट कि व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से। और ये तीनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होंगे, दोनों मोशन साइमल्टेनियस होंगे, एक साथ होंगे। एक साथ होंगे मतलब टाइम दोनों में कॉमन होगा, तो जितना टाइम हॉरिजॉन्टल का होगा उतना ही टाइम वर्टिकल का होगा। सेकंड, बट बोथ द मोशंस इंडिपेंडेंट भी होंगे,
तो दोनों मोशंस का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। ओके, बस एक ही चीज है लेने देने वाली, वो है टाइम। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption इज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। हवा का रेजिस्टेंस यानी एयर का पोजीशन हम नेग्लेक्ट करेंगे। सो विद ऑल थ्री assumptions एंड की पॉइंट्स, इन तीनों assumptions और की पॉइंट को कंसीडर करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, एक और assumption है, वैसे हम लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं किया, बट इन फ्यूचर यू विल गेट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वी ऑल से 9.8 meter per second square, we all know that, but let me clear. This value means g is equal to 9.8 meter per second square. It is the value of acceleration due to gravity over the ground, means over the earth surface. ये g का वैल्यू है अर्थ के सरफेस के ऊपर, सरफेस पर। बट अगर हम अर्थ के ऊपर जाते हैं, when we go beyond the earth, हम किसी हाइट पे जाते हैं, so value of g always decreases. ये हम सीखेंगे in future. So in future we will learn when we will study about the chapter named as the gravitation. But जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे, acceleration due to gravity decreases, हमेशा कम होता जाता है acceleration due to gravity. तो अब तो बात क्या हो रही है, हाइट से गिरा रहे हो तो ऊपर होंगे तो g कम होगा, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे फिर तो acceleration due to gravity, जिसे हम आज तक हमेशा कांस्टेंट लेते थे, तो जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड ना, तो g का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। तो यानी हाइट पे g का वैल्यू 9.6, फिर 9.7, फिर 9.8, फिर ये तो क्वेश्चन ही बदल गए। और if this thing happens, if acceleration due to gravity changes, it means your acceleration is non-uniform. This motion is non-uniform accelerated motion. And when your acceleration is non-uniform, means जब आपका acceleration constant नहीं होगा, I think we can't apply any of the equation of motion, because you all know that all the equation of motions has one limitations, that v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as. All the three equations of motion जो हमारे main हैं, all have one thing, acceleration. सब में एक चीज कॉमन है, acceleration. And can you tell me more about that acceleration? That acceleration is always uniform. तो अगर आप इस डेरिवेशन को रिवाइज करें एक बार क्विकली, so you all know that all the equation of motion is being verified for the uniform accelerated motion, यानी acceleration सेम होना चाहिए। बट रियलिटी में g का वैल्यू जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो कम होता है। तो that thing is that हमारा fourth assumption is that we assume that small g is nearly always constant. हम ये मान के चलेंगे कि स्मॉल g की वैल्यू लगभग हर जगह कांस्टेंट है। ओके, ऐसा नहीं होगा कि एट द ग्राउंड इट इज 9.8 और अगर आप थोड़ा सा हाइट पे जाते हैं, लेट्स सपोज यू गो टू अ बिल्डिंग व्हिच इज बीइंग 4 स्टोरी 5 स्टोरी मंजिल का बिल्डिंग है, अगर आप 5th स्टोरी पे जाते हैं तो आपका g का वैल्यू 9.8 से 4.2 हो जाएगा। There has been decrease in the g, एक और चीज क्लियर कर देता हूं, there is decrease in the g with the height, but that decrease in the g is very small, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन होता है, ऐसा नहीं है 9 का 4 हो जाएगा सीधा, very small. And if this variation or if this decrease or this change in the g is very small, so we will consider g as a constant. So this is our, you can say, the fourth assumption. Okay, शायद ये अभी नहीं भी देखते तो हम लोग जान जाते हैं, because you all, most of you always take g as a constant. But in future जब हम gravitation को पढ़ते हैं, and when we came to know about this fact, जब हमें इस fact के बारे में पता चलता है, and when we revise our knowledge, जैसे जैसे, और ये चीज आपको याद रखना है, समझना है, in future जब भी आप कोई नया चीज सीखते हैं तब उस चीज को always back पर apply कीजिए। When you learn something new, please apply that new things to your previous knowledge and try to get that with that new knowledge, क्या उस नई knowledge की वजह से हमारी किसी previous knowledge पे कोई effect पड़ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। This is called as an analyzation. और with the time के साथ कहते हैं ना, समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, that is the survival thing. तो जब आप कोई नई चीज सीखते हो तो ऐसा नहीं कि नया सीख लिया ओके ठीक है,
उस नए चीज का अप्लाई कीजिए, क्या मेरे पुराने नॉलेज पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है। और व्हेन वी केम टू नो अबाउट द जी फैक्टर, जब हमें जी के बारे में ये पता चलेगा तब तो हमारी सारी कहानी बदलेगी। हम देखेंगे यार, कभी हम ऊपर जा रहे थे, कभी हम नीचे जा रहे हैं, यानी हम लोग ऊपर भी हैं, हाइट पे भी हैं, फिर नीचे आ रहा है, इसका मतलब हाइट चेंज हो रहा है। हाइट चेंज हो रहा है तो जी भी चेंज होगा, और अगर जी चेंज होता है तो आज तक जितने भी जी के न्यूमेरिकल्स किए हैं वो चेंज होने चाहिए फिर तो। सो दैट्स व्हाई, फिर इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही इसकी assumptions बता देता हूं। I hope you are getting it. So these are the 4 assumptions and the key point with which we are going to work. तो ये वो सारे टाइम है, तो हमने अपना हाफ टाइम इनको समझने में और इन assumptions में लगाया। Let's start with the projectile motion, and first of all today I will discuss only the first projectile motion. मैं आपसे केवल फर्स्ट वाला projectile motion डिस्कस करूंगा with my name called as half projectile. Okay, चलिए बात करते हैं। So let's suppose we have a building or a tower, कुछ भी नाम दे दीजिए। We have a tower of height small h, okay, and we are throwing an object in a horizontal direction with velocity small u. ओके, आप लोग इसे स्मॉल u रख लेते हैं, और लेट्स सपोज इसे हम लोग ux रख लेते हैं, x एक्सिस ना, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क, बट ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी इट इज गोइंग टू फॉल इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड फाइनली लेट्स सपोज इट टचेस द ग्राउंड एट अ पॉइंट b. सो दिस इज आवर ग्राउंड। ओके, तो हमारे पास क्या क्या है? सो लेट एन ऑब्जेक्ट is thrown horizontally. आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, कैसे? horizontally with velocity ux, with velocity ux from height small h. कहां से थ्रो किया? small h से. So thus it will touches the ground, it will touches the ground at b, and let's suppose वो ground को कहां पे आके टच करता है? b पॉइंट के ऊपर. So now we all know that कि हमारी बॉडी के पास क्या क्या है? What we have in our body, हमारी बॉडी के पास horizontal and vertical motion है, बट अगर आप एक बार assumptions को रिवाइज करें, both the motions are simultaneous, but second point, both the motions are independent. Air resistance should be neglected and g should be taken as nearly constant. ये चार assumptions और key point को ध्यान में रखना है, and with that assumptions and the key point, let's start dealing with that, and let's start of the first thing that we are going to do. So first projectile, and the first thing that we are going to do, that nature of trajectory, nature of trajectory, or you can say the path. Let's study what is the nature of the path. हमारे बॉडी का पाथ का नेचर क्या होगा? तो one thing is that always you have seen that till now जब भी मैंने projectile motion बनाया, और चलिए हाफ का ही बात करते हैं, I draw this in little bit in this manner. हम लोगों ने इसे कुछ इस तरीके से बनाया. Then if I give you little bit mathematics, अगर थोड़ा सा ज्योमेट्री और ग्राफ के बारे में बात करूं, this type of path is called as parabolic path. इसे क्या बुलाते हैं? पहले इसके बारे में बता देता हूं. This path is called as parabolic path. Means parabolic curve. ये parabolic in nature है, straight नहीं है. ऐसा नहीं किया आप लोगों ने कि ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया तो ऑब्जेक्ट इस रास्ते से आएगा. No. ऑब्जेक्ट इज कमिंग इन दिस मैनर. आप लोग हमेशा ऐसे ही बनाते हैं और हम लोग हमेशा ऐसा देखते भी हैं. तो व्हाई द पाथ इज इन कर्व? हमें ये दिखाना है कि पाथ कर्व क्यों है. हमें दिख तो रहा है बिकॉज हम जानते हैं. एंड सच टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड एज पैराबोलिक पाथ. सो यू कैन से इन इनडायरेक्ट वे वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी और द नेचर ऑफ पाथ इज पैराबोलिक. हम ये प्रूव करने वाले हैं. एंड हाउ वी कैन प्रूव दैट? ये चीज आपको नोट बना के अभी के लिए लिखना पड़ेगा, दैट फॉर पैराबोलिक द इक्वेशन शुड बी y should be directly proportional to x square.
तो पैराबोलिक पाथ के लिए y मींस y एक्सिस का जो भी डिस्प्लेसमेंट है, द डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस। यानी अगर आपका x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 2 होता है तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 4 होना चाहिए, मतलब 4 फैक्टर में चेंज होना चाहिए। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, कांस्टेंट तो आएगा, बट यू ऑल नो दैट प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा फैक्टर के बारे में बताती है कि ये इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। सो हाउ द y एक्सिस डिपेंड अपॉन द x एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज पैराबोलिक इक्वेशन। इसे पैराबोलिक इक्वेशन बुलाते हैं। जब भी आप इस वेरिएशन का कोई प्लॉटिंग करते हो, जब भी आप कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग करते हो, आपका ग्राफ हमेशा कर्व जाता है। यानी x में 1 चेंज करो तो y में भी 1, x में 2 चेंज करो तो y में 4, क्योंकि उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। और जब भी आप इसे ड्रॉ करेंगे, दिस पाथ वुड गो कर्व एंड सच टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड एज पैराबोलिक पाथ। ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द पाथ। हम पाथ का नेचर निकालने जा रहे हैं और ये चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, सच टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड एज पैराबोलिक। और अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि पैराबोलिक है या नहीं है, हमें ये चीज प्रूव करना पड़ेगा। तो आप इसे पैराबोलिक इक्वेशन भी बुलाते हैं फ्रॉम द मैथमेटिक्स। तो वही वाली बात है, हम मैथमेटिक्स को एज अ टूल यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और इन फ्यूचर आप लोग इसे मैथमेटिक्स में और भी डीपली स्टडी करेंगे जब आप इसके साथ इन फ्यूचर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो टू स्टार्ट और टू स्टडी विद दैट, सो आई होप डायग्राम, so please draw the diagram and write down the instruction जो हमारे पास अवेलेबल है। and now we are going to start the first thing, so I am just only rubbing the instruction जो आप लोगों ने नोट कर चुके हैं। so you all know that how many motions that we are going to occur, हमारे पास कितने motions होने वाले हैं? 2 motions। so number 1 is horizontal and number 2 is vertical। अब ये मेरा एक, आप सीधा सा बोल सकते हो, दिस इज माई टेक्निक, ये मेरा तरीका है। मतलब हम लोग, मैं इसे कॉलम बना के पढ़ता हूँ, सिंस हमारे दोनों मोशन है और दोनों इंडिपेंडेंट है। देखो हॉरिजॉन्टल अलग ले लिया, वर्टिकल अलग। लेट अस कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, और आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू, प्लीज इफ यू वांट टू डील विद द न्यूमेरिकल, अगर आप प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पकड़ना चाहते हो तो कॉलम बांट लो भाई, हॉरिजॉन्टल का डाटा अलग कर लो और वर्टिकल का अलग कर लो, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिक्स है। So let's talk about the horizontal motion. What is the initial velocity in horizontal direction? बताइए, horizontal direction का initial velocity कितना था? ux, डन। इसी velocity से आपने उसे थ्रो किया था, so this is the point. Second, what is the acceleration in horizontal direction? You can say acceleration in x-axis. Now, as I discussed with you, when you throw anything in a horizontal direction, जब भी आप कोई चीज horizontal direction में throw करते हैं, so with that throw, there is only one thing जो आपकी velocity को change कर सकता है. There is one thing only which can accelerate you, and that thing is resistance offered by the air. हवा का resistance आपकी velocity को decrease कर सकता है. But as you know that one of the important assumption that the third one was air resistance is neglected। तो आप horizontal को देखिए, एक body horizontal direction में जा रहा है और air का कोई opposition नहीं है, तो बताइए कौन है और कौन है जो उसे रोक सकता है? I think no one। ओके, जब तक हम लोग इन्वॉल्व ना हो तो हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तो हमने तो थ्रो कर दिया। सो अब एयर में उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन अपोज कर सकता है? नो वन, ओनली एयर कैन, बट एयर का रेजिस्टेंस हमने नेग्लेक्ट किया है। सो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, मींस बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलेगी। क्या, कौन सा? हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म रहेगा। सो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी? Vx, it would be equal to ux। आपका वेलोसिटी सेम एज इट इज रहेगा। नाउ लेट आफ्टर टाइम t, लेट सपोज आफ्टर सम टाइम यू रीच टू द पॉइंट b। आप लोग कहां पे पहुंच गए? p पॉइंट पे पहुंच गए। तो आपने थ्रो कहां से किया था? a पॉइंट से, और t टाइम के बाद मान लीजिए एट एनी टाइम, रैंडम टाइम में यू रीच टू द पॉइंट p। नाउ टिल द पॉइंट p यू हैव कवर्ड सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, आपने कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया,
एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम आपने कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी किया. सो लेट्स सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ P वाज xy. ओके, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द A itself एंड यू ऑल नो दैट फ्रॉम वेयर जहां से भी हम लोग स्टार्ट करते हैं वही हमारा ओरिजिन बन जाता है. तो हमारा ओरिजिन यही है और इसके रिस्पेक्ट में वी कवर द x डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस एंड वी कवर द y डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस. ओके, आई नो दैट y डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. अगर हम ओरिजिन ले रहे हैं दैट नेगेटिव इंप्लाइज दैट कि बॉडी डाउनवर्ड फॉल हो रहा है. ओके, सो दीस आर द कोऑर्डिनेट्स. ओके, एट द P पॉइंट आपका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा. तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी? Vx. In vertical direction, what is our final velocity? Vy. Okay, that is the different thing that in horizontal velocity वो उतना ही रहेगा जितना पहले था. वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं. चलो vertical velocity के बारे में बात करेंगे. So after time t, displacement horizontal के बारे में बात कर रहा हूँ प्लीज. What is the displacement? x is equal to s is equal to ut plus half at square. So जब horizontal की बात हो रही है तो horizontal information. So what is the horizontal displacement after time t? We have taken as a x. What was the initial velocity? ux t. And what was the acceleration? 0. तो ये तो 0 हो गया. So from here what is the time? It would be x divided by ux. So here हम लोगों ने यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला बना लिया. बट द टाइम जो हमें हॉरिजॉन्टल में लगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी इससे यहां तक A से P हॉरिजॉन्टल आने में कितना टाइम लगा? x by ux. I hope you got it. ना सिमिलरली लेट्स स्टार्ट विद द वर्टिकल मोशन. तो चलिए मैं इस वर्टिकल के साथ पढ़ना शुरू कर देता हूं. तो यू ऑल नो दैट ना वी आर वर्किंग ऑन द नेचर ऑफ पाथ. सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल मोशन. तो देखो दोनों मोशंस को अलग अलग पढ़ रहा हूं मैं. हॉरिजॉन्टल सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. लेट्स हेल्प मी आउट टू कलेक्ट द वर्टिकल मोशन. सो इन वर्टिकल मोशन व्हाट वाज योर इनिशियल वेलोसिटी? लेट्स सपोज uy. वर्टिकल मोशन में आपका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? मींस A पॉइंट पर. एट A पॉइंट व्हाट वाज द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन? ओके, हॉरिजॉन्टल थी वो तो थी. क्या हमने बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं थ्रो किया? क्या हमने बॉडी को ऊपर थ्रो किया? आई थिंक नो. क्या हमने बॉडी को नीचे थ्रो किया? नहीं, हमने तो बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था. सो वी ओनली गिवन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल. तो हमने केवल हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी दिया. वी हैवंट प्रोवाइडेड द वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी. सो व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन? 0. हमने तो नहीं दिया. ओके, वर्टिकल वेलोसिटी आपके पास आ रहा है क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? आई एम टॉकिंग इन, इट वुड बी प्लस g. So what is the acceleration in vertical direction? Plus g. And this acceleration will responsible for change in velocity. So what is the final velocity? Let's suppose the final velocity is vy. So what was I'm talking in about vertical. अब vertical के बारे में बात कर रहा हूँ बेटा मैं आपसे. So initial vertical 0, vertical का acceleration plus g and vertical का final velocity vy. So let's have the displacement. बात करें displacement का. So what is the displacement? Y is equal to, means sorry, firstly equation लिख लेते हैं, ut plus half at square. We are using the equation of motions. पहले equation of motion horizontal पे लगाया, फिर vertical पे. But याद रखना acceleration is taken as a constant. यहाँ तो acceleration 0 था क्योंकि horizontal में कोई है ही नहीं जो आपकी velocity को change कर सके. Vertical में है g. और g को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर फोर्थ assumption, और यू कैन से फोर्थ इंपॉर्टेंट की पॉइंट. सो व्हाट इज द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? y. व्हाट वाज द वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी? 0. वर्टिकल की कोई वेलोसिटी नहीं थी. प्लस हाफ gt स्क्वायर. द सेम टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर टाइम t. जिस टाइम में आप हॉरिजॉन्टल चले हो P पॉइंट तक जाने में, उसी टाइम में आप वर्टिकल आ रहे हो. सो दोनों मोशन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो टाइम दोनों में सेम चलेगा P पॉइंट के लिए.
हाँ बट अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, इसका अपना काम चल रहा है और इसका अपना काम चल रहा है. So what is the y? It is half gt square. Got it? But we all know that what is the t? T is equal to x by ux. T is the only factor जो दोनों में कॉमन होगा. ये बात हमने पहले भी किया था और स्टार्टिंग में मैंने बताया था. टाइम इज द ओनली फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये वही चीज है जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चल रहा है एक साथ. यानी जिस समय में आप हॉरिजॉन्टल गए हो उसी समय में आप वर्टिकल गए हो. तो y is equal to half g x by ux whole square. हम लोग रख सकते हैं टाइम, क्योंकि ये वही टाइम है जिसमें आप हॉरिजॉन्टल गए हो, बट ये वही टाइम है जिसमें आप वर्टिकल भी गए हो, तो टाइम तो वही जाएगा. ओके, सो y is equal to half g x square by ux square. So what is that formula? पहली बात तो ये बता लेते हैं ये किस चीज का फॉर्मूला बनाया हम लोगों ने. This is the formula displacement in vertical at any time. किसी भी t टाइम पर आपने वर्टिकल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया. What is that displacement? y is equal to half g x square by ux square. Okay, now what is half? Constant g हमने पहले कांस्टेंट लेके चले. What is ux? It is the initial velocity in horizontal motion, जो कि हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, because no one is going to change this horizontal velocity. हाँ एक चीज कर सकती है, फिर बोल रहा हूं, एयर रेजिस्टेंस, बट वो हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं. So अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है, half g ux square, so thus what we can say, y is being directly proportional to x square. Check this out. And whenever the y is directly proportional to x square, it is the equation of parabolic path. So thus nature of path or the nature of trajectory, कुछ भी बुलाइए, is parabolic in nature. Parabolic in nature or behavior. यानी आपका पाथ का नेचर कैसा होगा, पैराबोलिक. पैराबोलिक मींस कर्व पाथ होगा. एंड व्हाई इट इज बीइंग कर्व, क्योंकि इट शुड बी इक्वेशन, उसे पैराबोलिक इक्वेशन को ओबे करना चाहिए. कर्व होगा, स्ट्रेट नहीं आएगा. कोई ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता. यू कांट ड्रॉ कि सर हम ए से बी सीधे आ गए, ऐसे ही क्यों घूम के आए. दिस शोज और दिस प्रूव्स दिस एस्पेक्ट. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों ने हाफ प्रोजेक्टाइल को स्टडी किया, एंड दैट थिंग इज पैराबोलिक नेचर. आई होप यू गॉट इट एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हम लोगों ने उसे कैसे सीखा. डन. सो दिस इज होल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाफ प्रोजेक्टाइल. गॉट इट. अब हम सारी चीजों को थोड़ा बहुत क्विकली करते जाएंगे. वी विल डू लिटिल बिट क्विक एंड आई होप आप लोग इसे आराम से समझ लेंगे. So first of all, please note it down first, nature of trajectory or nature of path. On one side there should be horizontal data, on another side there should be vertical data, और फिर उस टाइम फैक्टर को ले लीजिए जो दोनों में कॉमन है. तो सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल का अपना एक परिवार है, हॉरिजॉन्टल की अपनी इंफॉर्मेशन है, भाई ये चल रहा है. वर्टिकल की अपनी इंफॉर्मेशन है, बट एक ऐसा चीज है जो दोनों परिवारों को जोड़ता है. वन इज, देयर इज वन थिंग व्हिच कोरिलेट बोथ द फैमिली, जो दोनों परिवारों में रिलेशन बनाता है. दैट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज टाइम. टाइम वो फैक्टर जो दोनों को जोड़ेगा, जो दोनों में दोस्ती बना के रखेगा. तो हमें वही करना है, तो इसका टाइम उठा के यहाँ पे डाल दिया क्योंकि ये साइमल्टेनियसली हो रहे थे ना. सो आई होप यू गॉट इट दैट पॉइंट एंड वी हैव डन द फर्स्ट थिंग, दैट नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी. डन. नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन सेकंड थिंग, एंड द सेकंड पॉइंट इज, So I'm rubbing all the informations, आप लोगों ने कर लिए, but अपनी पुरानी informations मत भूलिए. Means do not forget your horizontal and vertical. चलिए मैं उसे दोबारा भी लिख लूँगा, but we are going to jump on the second point. And what is that second point? Time of flight. It has a symbol capital T. Okay, so time of flight has a symbol of capital T, not the small t. Small t stands for any time. So what is the time of flight? FLIGST. It means the time during which
projectile is in air. Projectile is in air means ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपका प्रोजेक्टाइल हवा में था। मतलब कहां से कहां का टाइम, ए से लेके बी तक का टाइम, पूरा टाइम फ्लाइट कितनी देर तक उड़ रहा था वो, मींस कितनी देर तक हवा में था। तो स्टार्ट कहां से किया, ए, और फिनिश कहां पे गया, बी। तो चलिए टाइम निकालते हैं। सो टू स्टडी दैट टाइम ऑफ फ्लाइट वी विल स्टडी कि भाई ए से बी जाने में कितना टाइम लगा। अब इस ए से बी में आप हॉरिजॉन्टल भी गए हो और वर्टिकल भी आए हो। तो हॉरिजॉन्टल कितना गए हैं ये नहीं मालूम, व्हाट इज बीन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए, जहां से जंप किया, जहां से थ्रो किया, और जहां पे फाइनली टच हुई, इसमें हॉरिजॉन्टल कितना चले वी डू नॉट नो, बट इसमें वर्टिकल कितना चले, हाउ मच वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम द ए टू बी, एच। जितना बिल्डिंग का हाइट होगा, व्हाटएवर बी द हाइट फ्रॉम वेयर यू आर थ्रोइंग द बॉल, जिस हाइट से आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, वही हाइट तो आप वर्टिकल डिस्टेंस कवर करोगे पूरे मोशन में। ओके, एट एनी टाइम तो y किया था, बट पूरे मोशन में कितना करोगे, h। सो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हिच मोशन, वर्टिकल मोशन। सो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कौन सा मोशन पढ़े, वर्टिकल। सो चलिए एक बार मुझे वर्टिकल मोशन के सारे इंफॉर्मेशन दे दो। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल, सो वर्टिकल मोशन का इनिशियल वेलोसिटी 0। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल, एक्सेलरेशन, और वर्टिकल कहां से कहां बढ़ रहे हैं, ए टू बी का, पूरा ए से लेके बी तक का वर्टिकल मोशन स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग। ओके, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन वर्टिकल, इट इज बीइंग प्लस जी, वर्टिकल डायरेक्शन। सो लेट्स डिस्प्लेसमेंट, so displacement s is equal to ut plus half at square। so let's help me out, please help karna। what is the displacement, but which displacement, vertical। so what is the vertical displacement covered by you from a to b, a से लेके b तक आपने vertical displacement कितना किया, it has been h, means whatever be the height of tower, building जहां से आपने थ्रो किया। what is the initial vertical velocity, 0। time, capital T, ए से बी का टाइम, तो ए से लेके बी यानी वो टाइम जब तक आप एयर में हो उसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट बुलाएंगे। तो यहां पे टाइम कैपिटल टी, हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर, गॉट इट। सो लेट्स हैव, सो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h बाई जी, और टी इज इक्वल टू रूट ओवर 2h बाई जी। So this is the formula for what? किस चीज का फॉर्मूला है? टाइम ऑफ फ्लाइट। मींस टाइम जिसके बाद आपने जब बॉडी को थ्रो किया तो कितनी देर के बाद वो ग्राउंड पे आके टच होगा। So this is the formula for time of flight. And if you check out this formula, this time of flight depends upon two factors. Number one, height from where you are throwing. उस हाइट पे डिपेंड करता है जहां से आपने इसे थ्रो किया। नंबर टू, इट डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हमारा कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, दिस टाइम ऑफ फ्लाइट इज बीइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर एच। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट के साथ कैसे रिलेट है, एच डायरेक्टली बट अंडर द स्क्वायर रूट। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट केवल एक ही फैक्टर पे चेंज होगा, यानी आपको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने उसे कितना हाइट ऑफ बिल्डिंग से थ्रो किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इट इन दिस फॉर्मूला देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएक्स, मींस हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इफ आई एम स्टैंडिंग एट अ 10 मीटर हाइट बिल्डिंग या टावर या कुछ भी है, सॉरी 10 मीटर हाइट पे हूं मैं, इमेजिन करो। तो इफ आई एम फ्रॉम थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम द 10 मीटर, तो इफ आई थ्रो द बॉल फ्रॉम द 10 मीटर, तो लेट्स सपोज ग्राउंड में टच करने में मुझे लग रहे हैं 2 सेकंड। इफ आई थ्रो द बॉल विद द 5 मीटर, अगर मैं 5 मीटर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से थ्रो करता हूं तो भी नीचे गिरने में 2 सेकंड लगेंगे। इफ आई थ्रो द बॉल विद 50 मीटर पर सेकंड, तभी भी मुझे नीचे गिरने में 2 ही सेकंड लगेंगे। इफ आई एम थ्रोइंग द बॉल फ्रॉम द सेम हाइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वर्टिकल के कंपोनेंट को। और टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल हाइट पे डिपेंड कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई लेना देना नहीं है कि आपने उसे किस वे में थ्रो किया।
तो वर्टिकल आने में आपको टाइम कितना लगा वो आपका डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कोई नहीं, तो आप कितनी भी वेलोसिटी से थ्रो कीजिए बॉडी तो उसी टाइम के बाद नीचे गिरेगा इफ हाइट सेम है तो। गॉट इट? सो दिस इज आवर सेकंड पॉइंट नेम्ड एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने पता लगाया वो कितनी देर के बाद गिरेगा। द थर्ड पॉइंट, it is called as the range. And what is the range? The maximum horizontal distance covered. The maximum horizontal distance covered. तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना horizontal distance कवर कर सकते हो? This is your range. इससे ज्यादा जा सकते हैं नहीं, क्योंकि सर टचेस द ग्राउंड। बी पॉइंट पे उसने ग्राउंड को टच कर लिया और ग्राउंड को अगर टच कर लिया तो रेंज मैक्सिमम हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ रेंज। रेंज मतलब कितना दूर तक जाके गिरेगा, बोलते हैं ना रेंज कितना है इस चीज का, दैट मीन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो कौन सा मोशन पढ़ना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ते हैं। चलो हॉरिजॉन्टल मोशन, जल्दी से मुझे सारी चीजें कलेक्ट करके दो। In horizontal motion, what is your initial velocity please? Is ux. What is the acceleration in horizontal? 0, because there is no opposition. So thus distance covered या displacement कितना किया आपने? Maximum. तो s is equal to ut plus half at square. तो a तो 0 हो गया, तो r is equal to ux into t. T stands for time. अब देखिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट जहां से आपने थ्रो किया था टू द बी पॉइंट जहां पे आपने ग्राउंड को टच किया। तो जहां से थ्रो किया और जहां पे टच किया वो डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो आई थिंक टाइम भी वही चाहिए। तो आई नीड द टाइम फ्रॉम ए टू बी। मुझे ए से लेके बी तक का जाने का टाइम चाहिए, बट हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। बट टाइम फैक्टर यू नो दैट टाइम फैक्टर इज कॉमन फॉर हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी, यानी जितना टाइम आपको ए से बी नीचे आने में लगा उतना ही टाइम आपको ए से बी हॉरिजॉन्टल जाने में लगेगा। इट इज साइमल्टेनियस प्रोसेस, तो इसका मतलब टाइम वही चाहिए। सो टाइम वुड बी कैपिटल टी। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और अभी अभी हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला बनाया है, तो r इज इक्वल टू क्या बन गया? ux into root over 2h by g. So here we have the third formula. हम लोगों ने फर्स्ट प्रोजेक्टाइल को पैराबोलिक प्रूफ किया और वहां पे y का एक फॉर्मूला बना लिया, means the vertical displacement in any time. Then we calculated the time of flight कि भाई टोटल कितना टाइम लगेगा। Then we calculated the maximum horizontal range कि भाई कितना दूर जाके वो फॉल कर सकता है। So we are making the formulas, और ये डेरिवेशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं बेटा, और न्यूमेरिकल्स ऑब्वियस सी बात है इन्हीं के ऊपर ही होने वाले हैं। ओके, सो प्लीज these 2 points please note it down. Done? Okay, now we are going to study the last thing about the half projectile and we are finished with the half projectile. हम आखिरी चीज और पढ़ेंगे। हमने उसके पाथ को पढ़ा, उसके टाइम को पढ़ा, उसके रेंज को पढ़ा। Now we are going to study the fourth and the last thing is velocity of projectile या फिर body at any point या at any instant, किसी भी टाइम पे आपका वेलोसिटी कितना है। तो चलिए जो हमने वही पढ़ा था वही शुरू करते हैं। लेट एट टाइम t, पहले स्मॉल t टाइम पे देख लेते हैं, किसी भी टाइम पे मींस एट p पॉइंट। तो चलिए p पॉइंट को स्टडी करना शुरू करते हैं। So at p point how many velocities we have? दो, हमारे पास दो वेलोसिटी है, तो हॉरिजॉन्टल vx और वर्टिकल vy। तो चलिए, so first of all horizontal, so for horizontal motion what is your initial velocity? Please help me out, मुझे जल्दी से हेल्प करेंगे। Initial velocity was ux. What was the acceleration in horizontal? हम बार बार इस चीज को पढ़ रहे हैं, 0. ओके, आफ्टर टाइम कितना? स्मॉल t टाइम के बाद। सो व्हाट इज योर फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी एट p
इनिशियल वेलोसिटी कहां पे थी, ए पर थी, एंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी इन x एक्सिस इज इक्वल टू जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी था। मींस द फैक्टर, या फिर सीधी सी बात अगर समझने वाली कहूं, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द वेलोसिटी इज ऑलवेज सेम। हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगा। तो यानी फाइनल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट वुड बी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में थी। डन। नाउ प्रॉब्लम कौन सी वेलोसिटी में, वर्टिकल। बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बिकॉज वर्टिकल मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वर्टिकल मोशन। सो जल्दी से हेल्प करो, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी क्या बेटा, 0। you can say uy is 0, क्योंकि वर्टिकल मोशन में हमने स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं दिया, यानी ए पॉइंट पर वर्टिकल की कोई वेलोसिटी नहीं है। what is the acceleration, so the acceleration in vertical direction is plus g, so let's have final velocity means कौन से पॉइंट पे, p पॉइंट पे, v is equal to u plus at, so vy is equal to 0 plus g into t। कितने टाइम के बाद, t टाइम ना, साइमल्टेनियस टाइम। तो जितना टाइम हॉरिजॉन्टल आने में लगा, vx में लगा, उतना ही टाइम dy में लगा होगा। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया था, पाथ को निकाला था, इस बार फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इन y एक्सिस, इट वुड बी gt। ओके, सो p पॉइंट पे दोनों वेलोसिटीज मिल गई। सो दस net velocity at p, net velocity at p, p मतलब at any instant, किसी भी टाइम के ऊपर। so कितनी वेलोसिटीज लग रही है सर, 2। and what is the angle between both the velocities, 90 degree, and you all know that velocity is a vector quantity। और अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो अब वेक्टर एडिशन तो लगेगा। तो अब तक शायद सोच रहे होंगे आप लोग, सर हम पूरा पढ़ के आगे, एंड हो गया, 1 घंटा होने को जा रहा है, या फिर हो गया होगा ऑलमोस्टली। सो हमने अब तक वेक्टर के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं किया, अब यूज हो गया सर। सो व्हाट इज द वेलोसिटी, v इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल बिटवीन a and b। vx represents the velocity in x axis, vy represents the velocity in y axis, and what is the angle between x and y, 90 degree, cos 90 0। so what is the resultant velocity, vx square plus vy square। I hope you got it। the resultant velocity at any point, जो कि अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कितना होगा, v is equal to root over velocity in x axis square plus velocity in y axis square, where velocity in x axis is the same जो पहले था, but velocity in y axis is equal to gt। वो आप लोग यहाँ पे लिख के अगर इस फॉर्मूले को और लंबा या मॉडिफाई करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, नहीं तो अदरवाइज आई थिंक ये बहुत आसान है, ये अलग याद रख लेते हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे। डन। तो वी गॉट द वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी तो पता तो चल गई, बट उस वेलोसिटी में डायरेक्शन भी तो चाहिए। सो लेट्स सपोज दिस एंगल इज बीटा, तो ये हमारे लिए क्या है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट जिसके साथ एंगल बनाता है उसे हम लोग क्या बुलाते हैं, ए वेक्टर। तो ये हमारा ए वेक्टर भाई, ये हमारा बी वेक्टर, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan बीटा, अगर आप याद करके बताएं, फॉर एंगल या रिजल्टेंट tan बीटा इज इक्वल टू vy बाय vx। अगर आपको याद है, भूल गए या याद है, वी मेक वन केस, वन इंपॉर्टेंट केस बनाए थे हम लोगों ने, when थीटा इज 0, when थीटा इज 180, when थीटा इज 90। रिवाइज कीजिए, द थर्ड केस when थीटा इज 90 बिटवीन द टू वेक्टर्स। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होगा तो रिजल्ट इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड tan बीटा वुड बी ऑलवेज इक्वल टू b बाय a। अब यूज कर लेते हैं, नहीं तो अगर आप वो यूज करना चाहते हैं b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, इट इज योर चॉइस। ओके, आई एम यूजिंग द टर्म जो हम लोग सीख चुके हैं वही यूज करते हैं। सो हियर बीटा क्या आएगा, tan इनवर्स vy बाय vx, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vy, ये हमें मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ vx। नाउ वन थिंग, एक बार मैंने आपको पहले भी बोला था, फिर भी ये डाउट्स मेरे पास फ्रीक्वेंटली आए हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। द पॉइंट इज दैट व्हेन वी राइट बीटा, बीटा मींस एंगल,
इन tan इनवर्स समथिंग, अगर मैं आपको एक वैल्यू देता हूं, लेट सपोज tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, आपने vy और vx का वैल्यू रखा एंड यू गॉट द आंसर 1/√3. सो व्हाट इज द एंगल? बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3. इसका मतलब ये चीज क्या बताती है कि एंगल कितना है? एंगल उतना है जितना tan की वैल्यू 1/√3 होती है जिस एंगल पर, यानी बीटा की वैल्यू उतनी होगी जितनी टेंजेंट यानी tan ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू 1/√3 होगी. एंड tan की वैल्यू 1/√3 कितने डिग्री की होती है? सो दिस वुड बी 30 डिग्री. सीधी सी बात है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ tan इनवर्स 1/√3? इट इज 30 डिग्री, क्योंकि tan की वैल्यू 1/√3 कहां पे? बट इफ यू फाउंड सम अदर टाइप ऑफ एस्पेक्ट लाइक 2/5, अब बताइए, फिर से वही बोलते हैं, बीटा की वैल्यू वही है जो tan ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू 2/5 है. अब tan की वैल्यू 2/5 कहां पे होती है? हमें नहीं मालूम. We only learn only the specific values. हम लोगों ने केवल पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वैल्यूज को लर्न किया, लाइक 0 डिग्री, 30, 45 एंड अदर. So we do not know what is the value of 2/5 की वैल्यू कहां है and what is the value is being available here. So we do not know, हमें नहीं मालूम उसका. So in that case हमारे पास दो तरीके हैं. Method number 1, either use your scientific calculator. But CBSE does not allow the use of scientific calculator up to the 12th class. Okay, when you go into the college और especially engineering में जाएंगे तो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है. सेकेंडली, दूसरा तरीका, ये वैल्यूज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल से निकाल सकते हैं, जो आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स की बुक के एंड में लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, वो हम बाद में बात करेंगे जब हमें यूज पड़ेगा उनका. एंड हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स भी आती है, साइन की टेबल, मतलब उस टेबल में सारी वैल्यू कैलकुलेटेड करके लिखी हुई है. और बट इन द सीबीएसई हमें वो भी अलाउड नहीं है. तो पॉइंट इज दैट हमारे पास कोई कैलकुलेटर भी नहीं है, हमारे पास कोई वैल्यूज भी यूज करना अलाउड नहीं है, और कैलकुलेशन ये फिर बहुत लंबे जाते, सीधी सी बात है. इन दैट केस वी विल अलाउ टू लेफ्ट आवर आंसर इन दिस मैनर. तो एवरी एग्जामिनर, सीबीएसई टीचर, एग्जामिनर, दे नो योर लिमिटेशन. हम आपकी लिमिटेशन जानते हैं कि आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, आप टेबल यूज नहीं कर सकते, तो आप अपने आंसर को यहीं पे लेफ्ट करेंगे. सो इन दैट केस यू कैन लेफ्ट. अगर आप उसकी वैल्यू जानते हो तो आप आंसर लिख दीजिए, और अगर आप नहीं भी जानते हो तो भी आप यहाँ पे इसे tan इनवर्स में छोड़ सकते हो. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट. कहां पे? एट एनी इंस्टेंट. ओके, सो दिस इज द पॉइंट. नाउ इसमें बस एक चीज ऐड कर सकता हूं, वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड. इस चीज को प्लीज थोड़ा सा समझ सकते हो. बिफोर टच द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले वेलोसिटी क्या था? तो देखो, फाइनल वेलोसिटी का तो फॉर्मूला हो गया √vx² + vy². तो हॉरिजॉन्टल तो ऊपर बीच में ग्राउंड को टच करने से पहले, जस्ट पहले, हॉरिजॉन्टल तो सेम रहने वाला है, ओनली द वर्टिकल इज चेंजिंग. तो आपको कहां की बात की गई है? बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब जस्ट बी पॉइंट पे. तो मतलब टाइम बी पॉइंट तक का चाहिए, ए से लेके बी तक का. एंड व्हाट वी कॉल दैट टाइम फ्रॉम ए टू बी? वी कॉल दैट टाइम ऑफ लाइट. यानी इस केस में स्मॉल टी वुड बी इक्वल टू कैपिटल टी, और बाकी अदर चीजें सारी सेम नहीं. सो दिस इज होल अबाउट द हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन. सब कुछ हम लोगों ने पाथ फॉलो किया, हमने पाथ को समझा, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को अलग किया. और देखिए, आप हर बार वही कर रहे हैं, हर बार वही चीज, बस अपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से. वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और अपने आप को हैबिचुअल बनाना है. इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कीजिए, उन्हें अलग कीजिए. ओनली एक चीज है जो दोनों में कॉमन जाएगी, वो है टाइम. वो आपको यूज करना है, उन्हें वर्क करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर. सो दिस इज होल अबाउट द हाफ प्रोजेक्टाइल. एंड basically as usual you will get the some of the practice numericals. कुछ practice numerical मैं आपके सामने रखूंगा, 7-8 numericals मिलेंगे. You will please practice for that, ask your doubt and clear out this half projectile. We will meet in the next and the final lecture. हमारा final lecture होगा motion in the plane. We will study about the second projectile, जिसे मैं क्या बुलाता हूँ? Full projectile. Okay, in the books the name is given as the angular projectile, क्योंकि कुछ एंगल पे थ्रो करेंगे ना. तो फुल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल, वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर. उसके साथ मीट करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, एंड वी विल टच डाउन टू द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मोशन इन प्लेन.
So in next lecture we are going to finish that up. So please hurry up, complete कीजिए, पुरानी चीजें रिवाइज कीजिए और अंडरस्टूड और अपने टॉपिक्स के डाउट पूछते जाइए. So please note it down, solve the assignment जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा वहां से डाउनलोड कीजिए and please go with that. Thank you very much.